Welcome to another podcast where we discuss ideas, journeys, entrepreneurs, and their experiences. In today's world, we want everything, but let's be real, it's not always practical to own it all. And renting is the ultimate hack to keep up with trends without breaking the bank. Just rent a product, enjoy the stuff while you want it, and once done, return it back and move on to the next big thing. And today we have with us a very special guest and young entrepreneur who is doing very well in the renting business, the co-founder of Rento, Om Shah. Hi Om. Hi. Let me tell you guys, he is a COAP pass out only and he has graduated 1 year ago and he has not taken up any job and working on a startup since his college days. एंड जब भी मैं उससे मिलता हूँ बात करता हूँ उसको हर डोमेन का नॉलेज होता है. आई ऑलवेज रिमेन सरप्राइज्ड कि कैसे, बट या सो ही इज अ वेरी चिल गाय एंड ambitious guy, I must say. So yeah, Om, let's begin. Let's talk about your startup Rento. So first of all, explain us what is your startup exactly about and how does it work, what does it do? Okay, before that, like there are two corrections I want to make. I graduated this year only. I am a 2024 graduate, and also yeah, I don't have so much of knowledge as you are telling. Like, so मेरे पास इतना भी कुछ नहीं पता. Like, it is just basic about a lot of stuff because I am curious about a lot of stuff. Okay, coming back to your question about Rento, right? So and how did I get into this, right? So I'll just start with how it all began. In first year of my college. So first year because of COVID it was all online because of lockdown. तो हमारा 12th भी लेट हुआ, हमारा फर्स्ट ईयर भी बहुत लेट चालू हुआ. इन Jan it began and फर्स्ट ईयर तो पूरा completely online था. And during that period we were told that EGD का एक kit आता है. So drawing boards and you have to buy a calculator, you have to buy all that other drafters and other entire kit just for one semester. And I thought like ठीक है अभी तो ऑफलाइन चालू नहीं हुआ है कॉलेज, सो देयर इज नो अदर चॉइस बट टू बाय दोज थिंग्स. बट व्हाट इफ देयर वाज अ प्लेटफॉर्म वेयर you could just rent it out from seniors, just share it among yourselves and make some amount of money out of it. So that's where the rental idea came into picture. I started exploring that. At that time I wasn't sure about anything like startups वगैरह, कुछ पता नहीं था. स्टार्टअप को सुना था टर्म क्या होता है. I did started exploring a lot about entrepreneurship and startup, and I came across this program called Startup India Learning Program. It was in collaboration with Government of India, so Startup India and Upgrad. It was around some 24 hours का self-paced program. I did that and I got an idea कि हाँ idea कैसे generate करते हैं, what is like a basic procedure of registering a company. So basically पूरा एक layout था उसमें where I could learn about the basics of entrepreneurship. I would say not entrepreneurship as whole because it is a very wide concept on its own. तो obviously coding वगैरह कुछ आती नहीं थी. I was in mechanical engineering and I asked a few friends of my 12th, जो मेरे 12th के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, कि ये ऐसा ऐसा आइडिया, what do you think about this? Do you think ये काम करेगा, ये एग्जिस्ट करता है? So I thought like let's give it a shot. I created a website with Google Sites which was free, hosting वगैरह कुछ नहीं थी. एक डोमेन ले लिया, नाम ढूंढने के लिए अगेन लाइक अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट या आई फाइनली फाउंड आउट अ नेम which had a ring, which had a buzz. It was called rentals.in. I purchased that domain and I created a basic website. Maybe I'll share you the images and screenshots if you want to attach that as well. Sure. जो पहली वेबसाइट थी उसकी, I still have that. तो उस पर मैंने मेरे सारे इक्विपमेंट्स लिस्ट कर दिए. All my products, I had books, a lot of books, my calculators, my drafters, and as soon as my college started offline in second year, मैंने कुछ फ्रेंड्स से बात करके उनके भी प्रोडक्ट्स लिस्ट किए. एंड हॉस्टल तो पूरा लॉकडाउन की वजह से बंद था. वन नाइट आई गॉट एक्सेस टू एक रूम जहाँ पे वो सब सामान पुराने सीनियर्स का स्टोर था. वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी एट नाइट कि यहाँ पे सामान पड़ा है, डू यू वांट समथिंग फॉर रेंटल्स. एट नाइट 1 PM वी वेंट इनटू दैट रूम. बहुत सारे बकेट्स, बुक्स, ड्राफ्टर्स, बहुत कुछ पड़ा था, हम ऐसे उठा के लेके आए एंड वी लिस्टेड ऑन रेंटल्स. एंड देन व्हाट आई डिड वाज आई वाज लिविंग इन आई ब्लॉक, जो अपना CUB हॉस्टल था.
देयर आई सॉ कि मेरे रूम में ही बहुत सारे सीनियर्स अपना पुराना सामान छोड़ के गए थे, सो लाइक बिफोर 2-3 years बिफोर कोविड जो सीनियर्स थे, बिकॉज हॉस्टल तो 2-3 साल से बंद पड़ा था. आई वेंट टू ईच एंड एवरी रूम इन आई ब्लॉक. वहाँ पे बहुत सारे बुक्स पढ़े थे. आज देम कि तुम लोग को चाहिए क्या? वो बोले नहीं चाहिए. हमने सब उठा के मेरे रूम में लेके आए, मी एंड माई फ्रेंड्स, एंड लिस्टेड इट ऑन रेंटल्स, जिसमें सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बुक्स थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एवरीथिंग. We started listing, and when we started publicizing about it on WhatsApp group, the first day I got 2 orders. I again like still have that video of my first order. मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे व्लॉग के टाइप वीडियो किया था कि ऐसे ऐसे ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं. दैट वाज आई गेस 20 रुपीज़ का पहला ऑर्डर था. वन ऑफ माई फ्रेंड की फ्रेंड रेंटेड आउट अ बुक फॉर 1 week. वो वीडियो शेयर करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे. मतलब स्टार्ट इनिशियली है ना, अभी कैसे चल रहा है. एक्चुअली मेरे पास भी नहीं था. लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिसेंटली अभी लास्ट वीक उसने बोला कि तेरा वीडियो है मेरे पास. वो आई थॉट ठीक है भेज दे, अभी मुझे चाहिए वो. सो या आफ्टर दैट लाइक इट स्टार्टेड किकिंग ऑफ इन कॉलेज. एवरीवन वाज इंटरेस्टेड, पीपल वर कमिंग सर्चिंग फॉर मी कि तुम्हारे पास ये मिलता है क्या रेंट पे, तुम्हारे पास वो मिलता है क्या रेंट पे. सो आई वाज द ओनली वन वर्किंग एट दैट टाइम. ऑफ कोर्स देयर वाज अ फ्रेंड हु वाज supposed to work on the website, but yeah, that didn't work out. Again, initial naive mistakes of getting co-founders or hiring people, उससे तो बहुत गया होगा. And yeah, after that everyone like juniors वगैरह आ रहे थे, पूरे सेमेस्टर्स के लिए ड्राफ्टर्स लेके जा रहे हैं. एग्जाम के टाइम पे we were out of stock for calculators because at that time no one bothered to buy calculators. What we used to do is सीनियर से रेंट करके जूनियर्स को दे रहे हैं, एंड बीच में we were earning commissions. और लाइक अब कैलकुलेटर कितने का आते थे और तुम रेंट पे कितने के लिए देते थे? Calculators, if you say, I guess it goes around like 800 to 1200 depending upon which model you buy. उस टाइम पे तो रेट होता है. I assume like कैसे भी जो scientific calculators which we are using. We used to rent out एग्जाम के टाइम पे because पता है कि नीड है. We were giving it for 100 rupees एग्जाम के टाइम पे. 2-3 दिन लेके जाओ, 100 रुपये में लेके जाओ. एंड पीपल वर हैप्पी, लाइक पीपल वर टेकिंग इट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या करेंगे, अभी एग्जाम आया है. राइट. सो दैट वाज इट. बट अगेन दैट वाज अगेन द पॉइंट कि 100 रुपये तो हम उसको चार्ज कर रहे हैं. एट द एंड दैट इज नॉट द प्रोडक्ट विच वी ओन्ड. इट वाज अ पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म. वी वर ओनली अर्निंग 20-30 रुपीज कमीशन ऑन वन ऑर्डर. फॉर अर्निंग दैट 20-30 रुपीज आई हैव टू चेक ऑल द रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज अगेन व्हाट इफ उसको कैलकुलेटर दिया वो गायब होगा, उसने दिया ही नहीं वापस. That's where one of the core problems of this business comes in. Why it is very difficult to work into this businesses. The same, like वो मुझे तब realize हुआ. So then I started taking उसका proof कि हाँ तेरा साथ फोटो लिया है, ये मैंने तुझे दिया है, तेरा MIS नंबर दे दे, तेरा email ID दे दे, तेरे फ्रेंड का रेफरेंस दे दे, फोन नंबर दे दे, सब कुछ दे दे. So that I used to make sure that doesn't run away with that product. So yeah, that is how it started. फिर some of my friends started asking me for my bicycles. कि मेरे पास एक बाइसिकल थी कि तू रेंट करेगा क्या. समर्स में obviously it was very hectic for them कि चल के जा रहे धूप में, तो साइकिल में रेंट करता हूँ. तो मैंने साइकिल, और लोगों को पूछा कि तुमको और क्या चाहिए. मैनी पीपल सेड कि हमें साइकिल्स चाहिए रेंट पे. एंड ऑल्सो बुक्स वर नॉट गोइंग ऑन रेंट बिकॉज लाइब्रेरी वॉज वन ऑफ माई कॉम्पिटिटर्स. So what, and Upper Bradwan was my competitor, ABC if you know, like वहाँ पे second hand books मिलते हैं. So everyone used to go there for engineering के books. So what we did is like cycles के हमने vendors ढूंढना चालू किया. We started planning out कि हाँ मुझे cycles का rental चालू करना है COE में. What can we do? We spoke to a few people, few cycle businesses जो owners थे कि rent out करना चालू करते हैं. The next thing we did was we went to Upper Bradwan. So 3 वेंडर से बात की रैंडमली ऐसे ही कि ऐसा करते हैं, तुम्हारा पूरा स्टोर हम हमारे प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, एक सेमेस्टर के बेसिस पे रेंट करना चालू कर दो. 70% तुम्हारा, 30% हमारा. एंड दे अग्रीड, लाइक ऑल ऑफ देम अग्रीड टू बी अ पार्टनर विद अस. बट वो सब एग्जीक्यूट करने से पहले ही सेकेंड लॉकडाउन लग गया एंड वी हैड टू गो होम अगेन. सो वी वर नॉट श्योर वापस कॉलेज कब शुरू होने वाले. एंड इट गेव अस अ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑल्सो. एट दैट टाइम आई वाज द ओनली वन डूइंग दिस. A few other people joined from my batch only who were interested into doing this. So again a naive mistake. सबको ले लिया कि हाँ ये भी करेगा वो भी करेगा, इसको इंटरेस्ट है तो, because obviously initially स्पार्क होता है कि स्टार्टअप है, कुछ फैंसी कर रहा है, it sounds you know क्या बोल सकते हैं उसको, it is a bit fancy because उस टाइम पे थोड़ा था वो क्रेज कि स्टार्टअप कर रहे हैं, फैंसी फैसिनेटिंग कि कुछ अलग कर रहे हैं बाकी लोगों से. हाँ एक चार्म था कि यार स्टार्टअप कर रहा है.
हम Right. स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, बट दैट फेड्स अवे रियली क्विक Hmm. वंस यू गेट टू नो द रियलिटी, कितना एफर्ट डालना पड़ता है उसमें. सो या वी एक्सप्लोर्ड लाइक हमारे तब तो सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग ही चल रही थी बिकॉज वन सेमेस्टर अगेन वी वर ऑफलाइन. सो वी डिसाइडेड टू शट डाउन कॉलेज का बिजनेस जो COP में चल रहा था रेंटल का, बिकॉज नंबर वन वी आर नॉट अर्निंग इनफ फॉर द एफर्ट वी वर पुटिंग इनटू इट. बिकॉज 20-30 रुपये पर ऑर्डर इज लाइक ठीक है, इसको एज अ हॉबी एज अ साइड प्रोजेक्ट चला सकते हैं, बट माई एम वॉज टू मेक एन ऑल इन वन रेंटल प्लेटफॉर्म एट द एंड कि हर चीज़ उस पर रेंट पे मिल जाए. व्हेनेवर यू थिंक ऑफ रेंटल इट शुड बी दैट ब्रांड दैट कंपनी, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस मार्केट वॉज कमोडिटाइज्ड एंड इट स्टिल इज. सो हमने फैशन रेंटल्स एक्सप्लोर किया, हमने बाकी रेंटल्स, इलेक्ट्रॉनिक रेंटल्स, वाइट गुड्स रेंटल्स, वो सब एक्सप्लोर किया कि कौन से सेक्टर्स है जिसमें हम जा सकते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड अगेन वी केम डाउन टू द सेम कि सब कुछ लिस्ट करना चालू करते हैं. वंस कॉलेज स्टार्टेड ऑफलाइन, there were some seniors also from PSF who was one of my seniors, he joined in. There were like many people, but again a lot of chaos. हमने थोड़ा वो ऐसे रोल भी दिया था, किसी को तू ऑपरेशन देख रहा है, तो ये देख रहा है, तो वो देख रहा है, तो डिज़ाइन देख रहा है. बट अगेन लाइक इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, यू गेट अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन एंड प्रेशर अबाउट क्रैकिंग दोज गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्रैकिंग दोज प्लेसमेंट एग्जाम्स. फिर many people started cutting off from them, and at the end we were only 2 people left. He was one of my oldest friends at COEP. तो उसने और मैंने फिर हम गए एग्रीकल्चरल मशीन रेंटल्स में, विच वॉज लाइक वेरी रैंडम कैटेगरी. इट वॉज सजेस्टेड बाय वन ऑफ माई मामास. तो मेरे मामा ने मुझे बोला था कि हिज फ्रेंड हैज़ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट शॉप, एंड व्हाट ही हैज़ नोटिस्ड इज मेनी फार्मर्स इन लास्ट मोमेंट व्हाट दे डू. इतना तो पैसा है नहीं फार्मर्स के पास कि पूरा इक्विपमेंट खरीद ले इन लास्ट मोमेंट, जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी. सो वो भाड़े पे लेके जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है इतना पैसा रख ले, उसका वापस कर दूंगा मैं. एंड ही सेड कि इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, यू कैन एक्सप्लोर दैट. सो पूरा 6 months वी वर इनटू दैट. दैट वाज आई गेस इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd year. तो वी वर 6 months हार्डकोर इन दैट सेक्टर. हमने पूरा ऑन ग्राउंड जाके बारामती में मेरे फ्रेंड का फार्म है, सो वी वेंट टू हिज होम, वी स्पोक टू लॉट ऑफ फार्मर्स देयर. एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आता है. गरुड़ा एरोस्पेस, इफ यू नो, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रोन स्टार्टअप्स इन इंडिया. MS धोनी उसका इन्वेस्टर एंड मेंटर है, एडवाइजर एंड इन्वेस्टर एंड इवन ब्रांड एम्बेसडर. सो वी ऑनबोर्डेड दैट कंपनी एज आवर वेंडर फॉर रेंटिंग आउट एग्रीकल्चरल ड्रोन्स. Okay, that that's we did, great. and we also onboarded the chief operating officer. मतलब उन्होंने just job छोड़ी थी. He was ex chief operating officer of the largest agricultural machine rental company in India. It is called EM3 Agri Services. तो कुछ $40-50 million की कंपनी थी वो उस टाइम पे. एंड उसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को लिंक्डइन पे रैंडमली आई टेक्स्टेड एंड ही गॉट ऑन अ कॉल विद मी. 1 घंटा कॉल हुआ एंड ही अग्रीड टू बी एन एडवाइजर एंड मेंटर फॉर अस. तो उनका अंदर का जो भी ऑपरेशंस था, ही वाज डायरेक्टली टीचिंग अस, ही वाज डायरेक्टली explaining us. He had a 22 years experience in that field, and he was like very very smart. And he also himself had raised $5 million for his own business, own startup, which he was working on. We have some questions here. Yeah. Yeah, so first of all, like as you said कि पहले एक चार्म रहता है कि स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, फैंसी कर रहे हैं, बट देन इट फेड्स अवे वेरी क्विकली क्योंकि बहुत रिगरस काम होता है, बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं. So now you have been working on a startup for the past 2 years, I think, 2 to 3 years. Not full time, but yeah, like I would say right now I'm full time. उसके पहले सब कॉलेज के साथ that was not Right. full time. Right. But so अभी eventually of course वो charm fade out हो गया रहेगा, and now you know the reality of the startups, the behind the scenes. So अभी फिर how do you motivate yourself to keep working and then don't get distracted? See, honestly, the people I'm working with right now are double managed, and they have passed all these things. They don't have that mentality कि मुझे जॉब करना है, मुझे लाइफ सेट करनी है, या फिर मुझे अभी घूमने जाना है. My partner himself right now, he is like very serious about work. तो वो सब तो है, मतलब that is one of the factors, and I try to cut off as many people as possible who have that mentality. ठीक है. There are 2 sets of people you have to be with. One is the friends. Friends के साथ तुम ये नहीं चूज कर सकते कि हाँ ये बंदा स्टार्टअप वाला है तो मैं इसके साथ दोस्ती करूँगा. Friends are for having fun, right? Whatever they might be doing, you are enjoying them. You are enjoying them, their company. That is
there. But when you're working, you don't want those people to hamper you. क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स अलग है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स अलग है. So maybe surrounding yourself with those people, that helped me a lot. Because I was about to give up, honestly. I was about to give up in final year of my college. When I was working at Rent-A-Cross as a co-founder. Because things obviously weren't working out and सब लोग मैं देख रहा हूँ आजू बाजू सब प्लेसमेंट्स को बैठ रहे हैं. Even in my batch there were 2-3 startups which shut down and those guys also took placements. तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. And everyone is getting placed, everyone is putting like a lot of work into cracking those interviews, cracking those aptitude tests या फिर जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं. एंड मेरा कुछ सुपर सेट अपना जो है लाइक वहाँ पे प्लेसमेंट्स होती है राइट. सुपर सेट पे मेरा कुछ प्रोफाइल वगैरह था नहीं. आई वेंट टू द फैकल्टीज़ कि मेरा प्रोफाइल अपडेट करो, मुझे प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना है. फिना की आई थी उस टाइम पे, आई रिमेंबर कुछ. एंड फिना की वजह से ठीक है इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, लेट्स ट्राई लेट्स अप्लाई. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली जागृति यात्रा का रिजल्ट आया एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट यात्रा. That entirely changed me because I have met 500 people who were like me, who were building something, who were at different stages of life, but they were very passionate about what they were building. So I got that peer network, I got that boost and I got that clarity. हाँ ये लोग कर रहे हैं. कुछ लोग मुझसे छोटे भी थे, कुछ लोग मुझसे बहुत एज में बड़े थे, कुछ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी. बट या दैट गेव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि ये तो मतलब जॉब तो नहीं करना है. क्योंकि वो तो ठीक है, वो बाद में 2 साल बाद जब ये कुछ फेल हो जाएगा, obviously that is the last option you have. But yeah, that is not something that motivates me right now. Okay, so basically what I understand is the peers or the people around you affect you most, and so you should have peers whose goals align with you basically, right. So I just I don't know, like I exactly don't remember कौन सा interview था वो, but Sam Altman obviously he is one of the smartest guys in startup ecosystem because he was a president of Y Combinator. He was a Harvard dropout. Harvard or Stanford, I don't remember, but yeah, I guess Stanford. When he was asked like why did you leave Stanford and for Y Combinator, so he said कि like Stanford में कैसा था, everyone was I don't exactly remember Stanford or Harvard, but yeah, you can cross check the fact. But Stanford I'm assuming as of now. Stanford में कैसा था कि he had like peers who didn't want to build something new. They were like कि मुझे ये कंपनी क्रैक करनी है, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंकर का जॉब चाहिए, मुझे इस कंपनी में टॉप पोजीशन का जॉब चाहिए. So that was all the motivation around them. And when Paul Graham came to him for Y Combinator कि you get in for this, he joined it for one reason because they had a peer network better than Stanford, which were all focused on building something crazy. And you see कि हाँ तेरे बाजू का बंदा कुछ तुझसे ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, कुछ बिल्ड कर रहा है अपने सपने में, then you also get kind of motivated. And one line he said which I'll never forget is you कितना भी try कर लो, you cannot overcome peer pressure. Like you cannot fight that. It is not in your hands. That's very difficult. I face it myself. So वो तो होता ही है. So like that is, it is better to always surround yourselves with people who are passionate about something. Okay. And that has been my case with college also. Like even मेरे जो roommates थे, one of them like I would argue say he is one of the smartest guys I met in COEP. The other one, even he didn't take any jobs. He is very passionate. He's an artist. He is very passionate about that stuff. He is running a game development studio right now. तो एक साल में वो खुद का एक गेम बना रहे हैं. So I have been lucky to get surrounded myself by those kind of people in COEP also. Okay. And as you said कि you onboarded various vendors, then the biggest drone company in India, the Garud Drones. So you were not some experienced person और ऐसे adult, basically बच्चे ही थे, right? Like 20-21 years. So like it's difficult for a big company or a vendor to believe कि एक 20-21 साल का बच्चा कुछ खुद का स्टार्टअप कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और उस पर भरोसा रख के ऑन बोर्ड आना. तो ब्रिंगिंग सच बिग वेंडर्स ऑन बोर्ड इज टफ. सो वो आपने कैसे किया? See, that was what I felt initially when I started looking for vendors कि vendors onboard करना मुश्किल होगा. But
आई वुड से कि दैट इज द इजीएस्ट पार्ट इन दिस, बिकॉज वेंडर्स, अगर किसी भी वेंडर को जाके बोलोगे, सो आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ हाउ गरुड़ा एरोस्पेस वी लैंडेड. लिंक्डइन पे ऑब्वियसली वी स्टार्टेड, हमने एग्रीकल्चरल रेंटल इज लाइक सो वास्ट, नो एक बहुत सारे मशीन्स हैं, तो हमें एक पिक करना था, किसी ना किसी से शुरू करना है. व्हाट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ, ड्रोन्स आर ट्रेंडिंग, ठीक है, उससे शुरू करते हैं. लिस्ट निकाली कितने सारे ड्रोन्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो, या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ड्रोन्स के रिलेटेड. वी स्टार्टेड कॉलिंग, लाइक देयर वर सम स्टार्टअप्स इन IIT दिल्ली, देयर वर सम अदर कंपनीज, वी स्टार्टेड कॉलिंग देम, बट नोबडी वाज रेडी टू सबलीज अस. सबलीज मतलब उनसे हम रेंट पे लेके आगे रेंट पे दे रहे हैं, एंड वी आर रनिंग अ कमीशन ऑन दैट. सो मैनी ऑफ देम टोल्ड मी कि आप परचेस कर लो, 14 लाख का एक ड्रोन पड़ेगा विद लाइसेंस. तो बोला इतना तो पैसा है नहीं, एंड दोज आर ऑल वेरी स्मॉल कंपनीज. तो गरुड़ा हमारे पास कॉन्टैक्ट था. हाउ डू वी गॉट दैट कॉन्टैक्ट वाज लिंक्डइन. अगेन आई रैंडमली कनेक्टेड देयर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सॉरी चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर एट दैट टाइम. उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमारी बात हुई, टेक्स्ट में उन्होंने नंबर शेयर किया, एंड या वी हैड हिज नंबर. तो हम डर रहे थे थोड़ा कि उनको कॉल करते कि नहीं, पहले छोटे छोटे अप्रोच करते हैं, उनको बोलेंगे हमारे पास 2-3 छोटे छोटे, आप भी आ जाओ. एंड छोटे छोटे एक भी नहीं आया. एंड रैंडमली ठीक है अभी इनको कॉल करके देखते हैं. एंड ही वॉज रेडी कि वो बोले हमारे पूरा इंडिया पर नेटवर्क है, एंड या यू कैन ट्राई दैट. हमें बस एक दिन पहले बता, वी कैन लाइक माई टीम कैन रीच द नेक्स्ट डे एंड डू द वर्क फॉर यू, एंड वी कैन सिट एंड डिस्कस अराउंड दिस. बट एट दैट टाइम ऑब्वियसली ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि हम कॉलेज के बच्चे को जितना ज़्यादा पता नहीं है. So he captured a lot of faults actually in my business model, in my way of dealing of things, and he guided me in that कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा कर सकते हो, and these are some challenges in this sector, this is why it won't work out, this is why it would work, and he guided on that. And वो बोले कि ठीक है ये इस पे काम करो, मे बी 2 महीने बाद वापस मुझे बताओ कि what did you do. So yeah, it is all about, I would say, finding right people at right time. So obviously if I would say that person which I connected was not that supportive, I wouldn't have cracked that deal. Same with all the other vendors also. But yeah, once you have that, once you have one person on board, जो एक credible person है who is backing you, then it becomes easier. But yeah, the point I was trying to make is कि vendors अभी on board करना is easier part, because अगर किसी को मैं जाके बोलता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म में we'll list you on that platform for free, तुम्हें बिजनेस मिलेगा, मुझे बस कमीशन दो. एवरीवन इज रेडी टू डू दैट. उसको बिजनेस आ रहा है, फ्री में बैठे, उसको कुछ करना नहीं है, एंड ही हैज टू पे मी ओनली व्हेन आई गिव हिम बिजनेस, राइट. उसका कुछ अपफ्रंट लॉस नहीं जा रहा है. प्रॉब्लम आता है कस्टमर्स को लाने में. दैट इज वन थिंग, लाइक मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वेंडर्स को लाना ठीक है फिर भी आसान है फॉर अ 2-sided मार्केट प्लेस, बट ब्रिंगिंग ऑन कस्टमर्स इनिशियली व्हेन यू डोंट हैव एनी मनी, एंड स्पेशली इन अ कैटेगरी लाइक रेंटल्स, इट इज नॉट अ D2C ब्रांड ना कि एड्स रन किए बाबा, ROI कैलकुलेट किया, ऊपर का मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे तुम लोग रन कर रहे हो, एंड देन यू आर गेटिंग दोज एड्स, जो रेवेन्यू आ रहा है वापस यू आर रनिंग एड्स एंड यू आर स्केलिंग ऑनलाइन. इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट इज वे मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन अ नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस. Okay. Logistics are very complicated, transaction is very complicated, even the risk involved is too much than any other business, I would say, जो normal trading का business होता है. Yeah, that is the thing. But like then how did you approach the customers, or how did you gain your first initial few clients? Initial customers, I would say, Rent-A-Cross में जब मैं था, so like yeah, again like it goes back to when I was working at Rent-A-Cross in final year. तब अच्छे खासे कनेक्शंस बन गए थे मेरे पुणे में कैमरा रेंटल के रिलेटेड, एंड वंस आई लेफ्ट Rent-A-Cross टू जॉइन रेंटो, अभी मतलब रेंटल्स भी मेरा प्लेटफॉर्म लाइव है, एंड दैट इज ऑल्सो रैंकिंग फॉर मतलब रैंकिंग मतलब इन SEO टर्म्स, आई वुड से गूगल रिजल्ट्स पे वो आ रहा है फॉर सर्टन कीवर्ड्स, इट इज ऑर्गेनिकली शोइंग अप फॉर गेमिंग कंसोल्स फॉर ट्रैकिंग ईयर राइट नाउ. So we're getting a lot of organic leads from there without. And you were co-founder at both the startups, right? So Rentex is something I started, like I had a domain, I had a website. So अभी Rento का कैसा है, Rento का we are working on a website, is not yet live, but yeah, once that is complete, we'll shift this entirely on that. ये डिपेंड्स अभी इस पर कितना टाइम लगेगा, बट तब तक हम क्या कर रहे हैं, तब तक Rentex का वेबसाइट लाइव है, उससे बिजनेस आ रहा है, we are keeping it running. Because what I feel is there are a few core challenges that are to be solved for any rental business to scale, and most of them are related to how Indian consumers or a few percent of Indians are. We face a lot of bad customers, a lot of fraudsters in this,
because it is similar to giving out loans, you would say. मैं 1 लाख का कैमरा अगर किसी को दे रहा हूँ वर्सेस मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, like both of them I would say वो लेके भाग जाएंगे, right? हाँ kind of similar है कि how do you make sure it comes back, how do you make sure it comes back in proper condition, and how do you make sure it comes back on time. So those 3 challenges are to be solved first, क्योंकि जितना ज़्यादा स्केल करोगे ये फ्रॉडस्टर उतने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये फ्रॉडस्टर तो है ही. there are 2 different kinds of people. Even if you check their background, check their address, check their everything, एक तो 2 टाइप के कस्टमर होते हैं. एक तो उसकी नीयत ही खराब है, वो पहले से ही मतलब चोरी करने के हिसाब से ही आया है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी फेक होते हैं. एंड वी लिटरली हैव दोज एग्जाम्पल्स. मतलब दिल्ली में आई विल से 2 months पहले वन ऑफ माई मेंटर्स टोल्ड मी 2 करोड़ का इक्विपमेंट चोरी किया, कैमरा रेंटल, मतलब कैमरा इक्विपमेंट एक लेडी ने, सिर्फ एक लेडी ने अलग अलग रेंटल बिजनेस से रेंट करके 2 करोड़ का इक्विपमेंट लेके गायब हो गए. एंड देयर आर लिटरली व्हाट्सएप ग्रुप्स जहाँ पे से पुणे, मुंबई, दिल्ली के PS5 रेंटल वाले सारे स्टार्टअप्स मतलब बिजनेस स्टार्टअप्स प्लेटफॉर्म एक साथ है ऐसे. फॉर कैमरा ऑल्सो देयर इज अनदर ग्रुप, फ्रॉडस्टर्स करके, स्कैमर्स करके, जहाँ पे सब लोग डालते रहते हैं कि ये मेरा ये इक्विपमेंट लेके भाग गया, इसने ये तोड़ा, इसने पैसा नहीं दिया, अगर आपके पास है इसको पकड़ लो. दैट इज द वे डीलिंग इट राइट नाउ. Okay. That is a very big problem here. This is a major problem, right? Yeah. So just for the audience, explain once in detail your business model, कि the stakeholders, the business model, और कैसे in general काम करता है. Okay, it is something I would say अभी क्या बता सकता हूँ मैं. I cannot reveal what future is going to be because that is something not we haven't launched yet. And even we are deciding on some monetization terms there. But abhi to simply speaking there are 3 parties. There is like us as a platform, as a marketplace. There are vendors and there are customers. And of course बीच में थोड़े और entities भी आते हैं, delivery agents and all. So it is simple business, like how a marketplace also works. एक कस्टमर को कुछ डिमांड होती है, he asks for us इधर थ्रू व्हाट्सएप कॉल या फिर हमारे जो भी चैनल्स होते हैं रीच आउट करने के वेबसाइट के थ्रू. इन दिस वी आर डूइंग इट मैन्युअली एज ऑफ नाउ बिकॉज अगेन द सेम प्रॉब्लम ऑफ स्केलिंग. तो हमें जब इंक्वायरी आती है वी स्टिल चेक्स द अवेलेबिलिटी, किस वेंडर के पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, एंड इफ इट इज अवेलेबल वी डायरेक्टली कम्युनिकेट द प्राइसिंग एंड कोटेशन टू द कस्टमर. इफ कस्टमर इज ओके विद दैट वी आस्क फॉर हिज डॉक्यूमेंट्स में उसका ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ चाहिए. Because we need to make sure again that equipment comes back and in proper condition. क्योंकि कुछ मिस हैपनिंग में किसी को तो पकड़ना पड़ेगा लीगली, राइट. सो वंस दैट इज क्लियर्ड, उसके बाद लाइक ऑब्वियसली वी इन सम केसेस वेंडर डायरेक्टली शिप्स इट टू देम, और इन सम केसेस वी अरेंज फॉर इट थ्रू डंजो पोर्टल या फिर एनी लास्ट माइल डिलीवरी सॉल्यूशंस. सो दैट इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ हाउ दिस इज वर्किंग ऑन, एंड वी अर्न अ कमीशन ऑन दैट थिंग. तो हर एक वेंडर का हमारा अलग अलग डील है बिकॉज हर एक वेंडर के रेट्स अलग अलग है, हर एक सिटी के रेट्स अलग अलग है. इन चेन्नई फॉर एग्जांपल द रेट्स आर वेरी हाई बिकॉज देयर कंपटीशन इज वेरी लो. इन पुणे, मुंबई थोड़े रेट्स कम है बिकॉज कंपटीशन है वहाँ पे. रेंटकर जैसे प्लेटफॉर्म से, रेंटकर, शेरपाल, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, लॉट ऑफ कंपटीशन देयर. So that is how like basic margin ही है बिकॉज वो छोड़ के कुछ नहीं है. ये बड़ा अबाउट बिजनेस मॉडल. So now you mentioned about जागृति यात्रा, right? So क्या होता है exactly उसमें, और how it turned out to be beneficial for you, and about your experience in जागृति यात्रा. Okay, it is very hard to brief it down to some points, but I'll try. First thing it helped me, जो उससे पहले बताया, it gave me clarity. अगर मैं जागृति यात्रा में नहीं होता, I would have been doing any job here, मतलब किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, because I was about to apply for that. So how did I get selected? So basically during my audition more than 22,000 people applied for Jagriti Yatra. So application was what you have to do is you have to fill out a form. कुछ 4-5 क्वेश्चंस होते हैं एंड कुछ 1500 वर्ड्स का एक क्वेश्चन का तुमको आंसर देना पड़ता है. अभी इतना हो रहा है तो, एंड फॉर्म फिल करने के लिए भी आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं. So it is 100 rupees upfront. So they only want serious people. So I was shocked, like 22,000 people actually paid 100 rupees and filled the form. तो मैंने जस्ट रैंडमली फॉर्म फिल किया था. मैंने देखा था शार्क टैंक पे
Momo Mami and some other like Perfora के founders met at Jagriti Yatra. There were other few startups also जो Shark Tank पे गए थे, they mentioned Jagriti Yatra. So वहाँ से मुझे पता चला actually. And I randomly apply भी मैं नहीं करने वाला था. Apply किया मैंने, क्वेश्चन सबमिट करते रिफ्रेश हुआ, क्वेश्चन का पूरा 15,000 मतलब सॉरी 1500 वर्ड टाइप किया, पूरा गया. आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि बाबा भी करना ही नहीं है. तो उस दिन बंद किया मैंने. नेक्स्ट डे वापस सोच खोला रैंडमली, ठीक है अभी भरते हैं. वो क्वेश्चन के आंसर मैंने पहले ही कॉपी पेस्ट करके रखे थे, सो दैट वेबसाइट क्रैश हुई तो वापस कॉपी पेस्ट कर लेंगे डायरेक्टली. फिर फाइनली जाकर अप्लाई किया, ठीक है. आई वॉज देन आई लिटरली फॉरगॉट अबाउट इट. आई फॉरगॉट अबाउट इट एंड देन रैंडमली एक दिन ईमेल आता कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर जागृति यात्रा. तो उसके बाद एक द एक्चुअल फी इज 1 लाख रुपीज़ फॉर दैट. And you also have scholarships. So level 1 to 4 scholarships were there. 1 being the least amount and 4 being the most amount of scholarship. So I got level 4 scholarship. Depending upon some documents on what stage you are at. If you are a student तो ज़्यादा मिलता है थोड़ा. Okay, so कोई फीस रहता है उसके लिए जागृति यात्रा के लिए? हाँ, उसका भी होता है. Yeah. So I have had to pay around 29,000 rupees for that. Okay. And which was all my earning, like I paid it for myself because उस टाइम पे रेंट क्रॉस में मैं काम कर रहा था. So I saved up some money and I paid it for it. And 29,000 after the scholarship? Yeah, 29,000 after the scholarship. Usually 1 lakh fee होगी. But I guess most of them get the scholarship. Like depending upon how do you pitch it to them कि आपको क्यों ज़रूरत है scholarship की. उसके बाद obviously they have एक पूरा onboarding process वगैरह वो सब होने के बाद like it is a 15-day journey. It starts from Mumbai, it ends in Mumbai. तो 15 दिन 8,000 किलोमीटर वो ट्रेन ट्रैवल करती है. तुम 15 दिन सोते हो ट्रेन में ही. तुम्हारा नहाना खाना पीना सब ट्रेन में होता है. You like at that time it was a special edition because it was under G20 and Startup 20. So for the first time I guess out of 500 people who were selected, 80 of them were from 20 different countries. They were foreigners. So G20 countries के लोग भी थे वहाँ पे. So from Europe, from US, from Canada, like a lot of other places also. तो उनसे भी बहुत सीखने को मिला. And what जागृति यात्रा focuses is it is on diversity. तो for example मेरे ही cohort में out of 7 people, I was from Maharashtra, 1 person was from France, 1 person was from Andhra Pradesh, 1 was from UP, 1 was from Rajasthan, 2 people were from Gujarat. तो इतना डाइवर्स होता है कि हर एक का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक का लेवल अलग होता है इन लाइफ, हर एक का एज अलग होता है. सो वो सब जब एक साथ आते हैं, यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज पीपल एंड यू आर स्पेंडिंग 15 days, यू आर लिटरली विद देम इन द ट्रेन. तो 10 जगह पे ट्रेन रुकती है. सो बैंगलोर में वी वेंट टू IISc, फिर आंध्र प्रदेश, फिर अ लॉट ऑफ प्लेसेस एक्चुअली. तो अरविंद आई केयर हॉस्पिटल हो गया. इवन वी वेंट टू इसरो. सो इसरो में भी उन्होंने हमें विजिट कराए. वी गेट टू यू नो सॉ वी गेट टू सी लाइक लॉन्च पैड्स जो 2 बड़े हैं मतलब मेजर इसरो के श्रीहरिकोटा में. वी गॉट टू सी दैट. उसके बाद श्री सिटी में भी गए. एंड द ओरिजिनल फाउंडर जो है उसकी जागृति यात्रा के, शशांक मनी, ही इज़ ए MP राइट नाउ. अभी इसी साल वो MP बन गए. तो उनका एक गांव है देवरिया जहाँ पे वो एक्चुअली बिलोंग करते हैं. सो दैट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे एक दिन तुम ट्रेन के बाहर सोते हो उनके पूरे जागृति यात्रा की इंक्यूबेशन सेंटर में. ओके. सो देर इज़ वन मेगा इवेंट जहाँ पे तुम्हें पिच करना होता है. यूर ग्रुप इज कंबाइंड. सो एक लड़कियों का ग्रुप एंड 2 बॉयज़ का ग्रुप. यू आर कंबाइंड एंड यू आर गिवन अ रैंडम इंडस्ट्री. तो हमें दिया था मैन्युफैक्चरिंग. एंड हमारे ग्रुप में ऐसा था कि लाइक nobody was from manufacturing. One was a doctor at Arvind Eye Care Hospital. I was like not from manufacturing background. ऐसा कुछ किया नहीं था मैन्युफैक्चरिंग में. बाकी तो IT कंपनीज ओन करते थे. एंड कुछ ग्राम विकास के जो होते हैं मतलब ग्राम विकास के लिए जो काम करते हैं, व्हाट यू से लाइक द वीमेन हु एम्पावर वीमेन टू अर्न समथिंग, रन देयर ओन फंड्स, हाउ टू मैनेज मनी. तो उनके लीडर्स थे. सो शी हैड अराउंड 80 वीमेन वर्किंग अंडर हर. तो दोज काइंड ऑफ पीपल वर देयर जिनको मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था. 2 people वर फ्रॉम लद्दाख. जो सोनम वांगचुक की स्कूल है लद्दाख में, सेकमॉल, उनके कुछ स्टूडेंट्स थे 2 लोग. तो दोज गाइज वर ऑल्सो लाइक 11th-12th के. तो उनको भी कुछ आइडिया नहीं है. सो पूरा ट्रेन में हम ढूंढ रहे मैन्युफैक्चरिंग का कौन है. पूरा ट्रेन में ढूंढने के बाद कुछ लोग मिले, उनके साथ बैठ के हमने कुछ आइडिया डिस्कस किया. वो सब एक वी केम अप विद द प्रोडक्ट. एंड स्कोरिंग ऐसा होता है कि तुमने जो जर्नी में देखा है अब तक उसको यूज़ करके तुम लोग कुछ बनाओ, सो दैट इट इज़ गेटिंग इम्प्लीमेंटेड देयर एज वेल.
So we came up in something and we pitched it. Pitch भी कैसा, हमें किसी ने बताया था कि there is a mentor also. He is the founder of Getma Parking. रसिक पानसर है, तो he is like very renowned founder. तो उन्होंने कुछ millions of dollars raise भी किए. He is like a very successful founder. तो उनको मेरे एक टीममेट ने जाके पूछा कि क्या क्या रखना है, बिकॉज यू डोंट हैव अ पीपीटी, यू डोंट हैव चार्ट, मतलब कंप्यूटर वगैरह कुछ, तुम्हें चार्ट पेपर दिया जाता है, उस पर तुम पेन से जो भी ड्रॉ करना ड्रॉ करो, पिच करो. और बाकी सब देख रहे हैं, हमारा अपोजिशन का ग्रुप लेके आया है 8 स्लाइड्स, हम सिर्फ एक पेज लेके आए हैं, उस पर सिर्फ एक बिजनेस मॉडल का कैनवास कुछ तो ड्रॉ किया है, एंड हम देख रहे हैं बाकी सब 7-8 लेके गए. एंड किसी को कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, कौन क्या बोलने वाला है, कितना बोलने वाला है, यू हैव सम टाइम लिमिट. एंड देन वी स्पोक एट लाइक लास्ट मिनट पे जाकर कुछ तो बोल के आया, एंड वी एक्चुअली वोन दैट कॉम्पिटिशन. तो रिजल्ट दिल्ली में आया व्हेन वी वर एट दिल्ली, सो वी वोन दैट. सो दैट वाज अ वेरी लाइक चिलिंग एक्सपीरियंस कि हाँ, मतलब हम तो पीछे जाके बैठे सबसे ऑडिटोरियम में, कुछ आगे नहीं वाला. जब रिजल्ट आया पूछा, पूरा ऐसे ऑडिटोरियम भाग के गए स्टेज पे, या वी वॉन. सो दैट वाज आल्सो एक वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू हैव. और कितने लोग होते हैं जागृति यात्रा के लिए? अराउंड आई वुड से 600 और उसमें से कुछ यात्री होते हैं. सो आई वॉज एन यात्री. यू नीड टू बी 21 to 27 years of age. So it is only for young people, and if you are elder than 27 you can apply as a what you can say mentor there. Mentor as in उसका टर्म भूल गया मैं, बट या सो जो यात्री का ग्रुप होता है, हर 6 यात्री के लिए एक वो असाइन होता है. ओके, एक मेंटर. So you can apply as basically the leader of that those people. Right. कि वो थोड़ा मैच्योर है, थोड़ा एक्सपीरियंस है. The majority trainers of young people. So like do you keep changing trains और ऐसे एक ही ट्रेन बुक करती है? So yeah, so train basically it is a special train which is assigned to जागृति यात्रा by government. तो ट्रेन भी कैसे होती है, that is specially customized for जागृति यात्रा. So पहले तो obviously you have engine, then you have pantry जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, then 2 डब्बे होते हैं for their team to stay. जो pantry की टीम है वहाँ पे सामान रखा होता है. उसके बाद there are washrooms for men. Then there are some 3-4 like for at our time it was 4. So 4 bogies were for sleeping of men. like मेल के लिए 4 थे. उसके बाद उनकी ERC करके ग्रुप होता है. So basically हमारे फेस्ट में जैसे कोर टीम होती है, the people who have portfolios are managed, so they have engine room club. तो उनकी टीम के लिए जगह होती है. उसके बाद बीच में people who are international delegates who are from 80 different countries, उनके लिए. Then their core team, core as in like people who are a part of जागृति यात्रा, the CEO of जागृति यात्रा, the founder of जागृति यात्रा, and many other advisors, उनकी टीम. उसके बाद फीमेल कंपार्टमेंट चालू होता है, and same like it ends with female washrooms, and at the end you have storage जहाँ पे G20 के फ्लैग्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, सब कुछ सामान स्टोर होता है. So that is a entirely customized train which जागृति यात्रा gets, and it is a very complex operation to follow also. When I was a volunteer at branding team, and I got to see a lot of other things as well. So basically what I came to know is Jagriti Yatra, you make an India tour, you get to experience and visit a lot of various places. So बहुत अलग चीज़ें समझ में आती है. Then you get a chance to network with amazing people, और पता चलता है और लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में. बेसिकली तुम्हारा नज़रिया ऐसे और वाइडन हो जाता है. Yeah, so I think that must be a really great experience. And yeah, so lastly, what advice you would like to give to the people who want to start their own startups but are afraid of failing, या फिर they don't have the courage to quit whatever is going on, like job or any other thing, and then work dedicatedly on their idea? मेरे फ्रेंड के एक मामा ने मुझे बोला था कि ऑल्सो एज अ स्टार्टअप, कि किसी भी चीज़ को रिजल्ट शो करने के लिए, किसी भी चीज़ के रिजल्ट शो करने के लिए यू नीड टू पुट 1000 days ऑफ एफर्ट्स इनटू इट. वो बोले अभी तेरी एज क्या है, 21-22, तो 24-25 तक कुछ सोच ही मत कि पैसा कमाना है, कुछ करना है. अभी तुझे कुछ आउटपुट नहीं आएगा. अभी यू विल बी अर्निंग अ लॉट लेस देन व्हाट योर पीयर्स और योर फ्रेंड्स और योर रूममेट्स माइट बी अर्निंग.
तुझे बार बार वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ इनके पास फ्री टाइम मिल रहा है, उनको सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही है, वो घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट. वो लगेगा तुझे, बट ट्रस्ट मी, लाइक जब तुम एक 1000 days तक पहुँचोगे कॉन्स्टेंट एफर्ट के बाद, फिर जो रिजल्ट्स आना चालू होंगे, यू विल बी probably earning a lot more than them. You will be probably at a very higher level in learning, in experience and in skills than them. You must be knowing a lot than them, and ठीक है उसके बाद भी वर्कआउट नहीं करता है, you always have an option to get a job. Like अभी मेंटालिटी कैसे हुई पता है क्या, कि everyone thinks getting a job is very hard because nobody has a target कि मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे यही रोल करना है, मुझे यही रोल में जॉब चाहिए. एवरीवन इज लाइक ठीक है मुझे कोर में जॉब करना है, मुझे नॉन कोर में जॉब करना है. कोर में स्पेसिफिकली क्या, आई डोंट नो किस कंपनी में जाना है, दैट इज नॉट फिक्स्ड. लाइक अगर तुम्हारा गोल ही फिक्स नहीं है, तुम हर कंपनी को अप्लाई कर रहे हो जिसमें तुम्हें मिल रही है, बस पैकेज की हाँ वही है. फिर क्या होता है, इवन आई सी सम पीपल अराउंड मी, सम फ्रेंड्स ऑफ माइन हु गेट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर लाइक वर्किंग दोज लॉन्ग आवर्स ऑफ ऑफिस. आने के बाद मैनेजर के ऊपर चिल्लाना, वो सब लाइक वो होता है. तो आई वुड से कि ठीक है, इट इज़ नॉट बैड टू डू अ जॉब और डू अ स्टार्टअप और एनीथिंग विच यू वांट टू डू. द थिंग इज लाइक फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. तो ही मतलब कुछ एम क्लियर होना चाहिए. हाँ, राइट. So yeah, had a good time, a good conversation with you. So let's wrap up this podcast here. And if you guys want to rent out any product, if you want to capture good pictures for that one event, just rent out a DSLR. If you want some trekking gear, you go for trekking just once in a while. Just rent out those gears and check out Rento for all these products. And yeah, stay tuned for the upcoming podcasts. And yeah, until then, keep learning, keep growing.